सत्संग कोटि यज्ञ अश्वमेध सहस्राणि पांचवे शतानि च। एक पल का सत्संग कोटि यज्ञ का फल। जिनके जीवन में सत्संग है वो मानो भरपूर होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तो जिन पर परमात्मा की कृपा होती है ना, उनको यहाँ आने का अवसर मिलता है। बाकी तो ट्रैफिक में फंसाई जाए। आवा निकलो तो ट्रैफिक में हलवाई जाए। आम अँ पोगे पोगो नाम कथा पूરું થયું। એ રોડ ઉપરનું ટ્રાફિક તો ક્યારેક હલ થાય છે, પણ એટલું બધું આમાં ટ્રાફિક જામી ગયું છે ને, એમાંથી માણસ નીકળી શકતો નથી। વિચારોનો ટ્રાફિક એટલું બધું આમાં અંદર ગૂંચવાઈ ગયું છે, એમ કોઈ વાત પૂછો, વિચાર વાયુ થઈ ગયું છે। विचारों पर अंकुश, नए विचार, पुराने विचार को फेंको, दूर फेंको। निंदा समान कोई पाप नहीं। मानसे जीवन में सफलता हो तो 4 वस्तुओं पर बहुत ध्यान है। आहार ऊपर, निंद्रा ऊपर, निंदा ऊपर, वाद में, स्वाद में, निंद्रा में, निंदा में 4 वस्तु। एक वाद में न हो। वाद એટલે કોઈ એમ કે જ્યારે રાત્રે છે તો માન લેવું છું કે રાત્રે છે, અમે ગોળ ને જાત છે, તમે ગોળ એટલે સૂર્ય દેખો જ નથી ને, ગોળ નામનો પક્ષી આવે એ એમ કે રાત્રે છે તો માન લેવું કે રાત્રે, કારણ કે ગોળ ની જાત છે ને, કારણ કે તેને સૂર્ય દેખો જ નથી, એને શું ખબર પડે દિવસ કોને કહેવાય, માનવી પડે ને ગોળ વાદ વિવાદ એની સાથે વિવાદ નહીં। વાદથી દૂર રહો અને સ્વાદથી સાવધાન રહો। સ્વાદ એ તરફ રતી જાય તો ગુલાબ જાંબુ ન ખવાય, કાજુ કતરી ન ખવાય, પછી ભારે ભોજન ન કરાય, પછી દહીં વડા થોડા ઓછા ખવાય, આજે પછી બહુ હાથકમાં પીઝા ન ખવાય, આખી રાત ઊ કરે, આખી રાત ઉવા ન દેતો હોય, ઊ કર્યા કરે, આખા ઘરને જગાડે। નહીં વૃદ્ધ હોય તો સાંજે ભોજન બંધ જ કરી દેવાનું છે। વૃદ્ધ લોકો સાંજે ભોજન લેવાનું, થોડું ભોજન, અલ્પાર્પણ સૂજવત, રાતનું ભોજન કભી નહીં। વૃદ્ધ લોકો તો બહુ કાળજી રાખવાની છે। વૃદ્ધની હાલ પર માણસે તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો માણસે આહાર ઉપર તો અંકુશ રાખવો જોઈએ ને। વાદમાં ન પડો, સ્વાદમાં ન પડો, નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવો, નિંદા ઉપર વિજય મેળવો। નિંદ્રા આપણો સમય નિંદ્રામાં ઘણો બધો જતો રહે, નિંદ્રામાં, અને બીજું નિંદા કરવાનું। જો કે તમે તો ડાયા માણસો એટલે કોઈ નિંદા નહીં કરતા, તો હું ખાલી તમને ઈશારો કરું છું। નિંદા સમાન કોઈ પાપ નહીં, સત્સંગ સમાન કોઈ પુણ્ય નહીં। એક ગાઓ નરસિંહને યાદ કરો, એક પંક્તિ ગાઓ,
ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક વાત બહુ સરસ કરી. જે માણસો કટુ વાણી બોલે છે, બીજાના છિદ્રો ખોલે છે, એ પોતે તો સુખી નથી થતો, તેની પ્રજાએ સુખી નથી. કટુ શબ્દ બોલે ને, કડવા 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 શબ્દો બોલે, કટુ વાણી, અને બીજાના છિદ્રો ખોલે, એ ખુદ સુખી નથી થતો, તેની પ્રજાએ સુખી ન થાય. પ્રજાના સુખી કરવા માટે આપણે પુણ્ય કરવું પડે છે. નથી કીધું બાપાએ આંબો વાવ્યો હોય તો છોકરાને કેરી ખાવા મળે. બાપાએ નકરા બાવળા ઠોક્યા છે, કાંટા સિવાય કઈ મળતું નથી. જરૂર કોઈ પુણ્ય હોય છે, આપણા પૂર્વજોના પુણ્ય હોય છે. અને હું તો ત્યાં સુધી ગુજરાતીમાં બોલી શકું છું કે તમે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા ને, એ પણ તમારા મા બાપના પુણ્ય હોય તો તમે અહીંયા સુધી પહોંચી શકો. માતા પિતાના પુણ્ય છે, કોઈ પૂર્વજોના પુણ્ય છે. તમારું પણ પૂર્વજન્મનું પુણ્ય હોય છે અને તમારા પૂર્વજોનું પણ પુણ્યજન્મ હોય છે. પૂર્વજો અને પૂર્વજન્મ આ બંનેના પુણ્ય ભેગા થાય એ માણસ સત્સંગ, ભજન, સાધના, બંદગી કરી શકે છે. આ સૌને ન. તેથી હર કથામાં ઉપસ્થિત જે હોય ને એમને તો મારા પ્રણામ હોય જ, પરંતુ આપણે આપ સૌના માતા પિતાને મારા કોટી કોટી પ્રણામ છે. આપ સૌના માતા પિતા ઉપસ્થિત હોય કે ના ઉપસ્થિત હોય, પણ એ આપ સૌના માતા પિતાને મારા હૃદયથી પ્રણામ છે. કોઈને કોઈ રીતે માતા પિતાએ તમને આપ્યું છે, તેથી અહીં સુધી તમે પહોંચ્યા છો. માતા પિતાએ જો તમને આપ્યું ના હોય તો તમારી કથામાં આવવાની કોઈ રુચિ ના હોય. તમારા લોહીમાં ભળેલું છે, ભળેલું છે. જેમાં જિંદગી આખી મોલમાં જ ભરી હોય એના છોકરા મંદિરમાં ન હોય, જે માં મંદિરમાં હોય એના છોકરા મંદિરમાં હોય છે. જે માતા પિતા આપણે પુણ્ય છે. સતી હાથ જોડે કહ્યું છે, તમે શિવની નિંદા નહીં કરો, આપ મૌન રહો तो पण शिव निंदा. अब सती के मन में हुआ मैं ऐसे ही शिव निंदा सुनती रहोगी तो मेरे पुण्य क्षय हो जाएगा. अब करूं क्या मैं? ऐसे सुनती रहूंगी मैं निंदा? नहीं सुननी चाहिए मुझे निंदा, कभी नहीं. और निंदा करने वाला तो मुंह भी मुझे देखना नहीं चाहिए. अब करूं क्या? सती ने कहा साधु, अब साधु विष्णु और वृद्ध है, इसलिए मैं बहुत आपके सामने नहीं विवाद करना चाहती, लेकिन मैं अब मेरा कान बंद कर. सती ने कान बंद कर दिया, सती ने आंख बंद कर दी, सती ने मुख भी बंद कर दिया. कुछ महात्मा गांधी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, दुनिया आपके हाथ में है. कान में कचरो न भराय, चित्त डामाडोल हो जाए. सती ने आंख बंद कर ली, कान मुख बंद कर लिया. जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई. और सती ने कान, आंख और मुख बंद किया, सती अंतर्मुख हुई और घट भीतर में एक प्रकाश हुआ, एक प्रकाश हो गया. इस प्रकाश के माध्यम से सती पहचान गई क्या कोई सन्यासी नहीं है, ये तो खुद अविनाशी है, आ तो खुद कैलाशी है. सती ने शिव जी को पहचान लिया. कब? सती अंतर्मुख हुई, बाहर भटकने से कभी नहीं, भीतर भीतर. बाहर की यात्रा तो हमने बहुत कर ली, लेकिन थोड़ी सी भीतर की यात्रा करनी चाहिए. जीवन जीने का बहुत मजा आएगा. आध्यात्मिकता उनको कहते हैं जो तटस्थ होकर खुद का दर्शन करते हैं, दोष दुर्गुण का तटस्थ होकर. जातने तो कभी न्याय नहीं આપવાનો, એની સાથે કોઈ બાંધછોડ નહીં કરવાની, બાકી બધાને ક્ષમા કરી દેવાના, જાતને કોઈ ક્ષમા નહીં કરવાની. જો જીવનમાં આગળ નીકળવાનું, સુખી થવું હોય તો પોતાની જાતને કોઈ માફી નહીં આપવાની, કभी नहीं. सती के मन मंदिर में दीप प्रकट हुआ और मेरे कवि ने सुंदर कल्पना कर दी. मंगल
सती ने भगवान को पहचान लिया। कैसे भगवान को पहचाना जाता है? भीतर घट से, घट की यात्रा से, जगत की यात्रा से नहीं। भीतर में ज्योत प्रकट हो गई, ये तो मेरा अविनाशी कैलाश साक्षात शंकर। दूरदर्शन करने से नहीं, अंतर्दर्शन करने से। बाहरी दुनिया में तो बहुत उलझे रहते हैं लोग, कभी उनका मंगल होने वाला नहीं है। जो भीतरी दुनिया में निरंतर अमल करता है, नहीं स्वात्मा राम, निरंतर खुद में स्थिर रहता है मेरा महादेव, निरंतर ध्यान, निरंतर ध्यान। महादेव ने कहा सती वरदान मांगो, मैं साक्षात शंकर, भगवान शंकर वरदान मांगो सती। सती ने कहा प्रभु आप मेरे साथ विवाह करो। दूसरा वरदान, सुंदर श्रृंगार करके, सोना चांदी हीरा मोती पीतांबर श्वेतांबर नीलांबर सोना चांदी मुकुट धारण करके आप अति सुंदर दुल्हा बनकर मेरे साथ विवाह करो। आप जो कहे वैसा ही होगा। भगवान शंकर गए कैलाश, सती अपना तप पूर्ण करके गए प्रदेश नगर, और शिव और सती के विवाह की कथा है। गर्गाचार्य सप्तऋषि नारद पधारे, विश्वकर्मा जी विवाह पत्रिका तैयार हो गई, और लक्ष्य ने कहा जाओ सप्तऋषि गर्गाचार्य नारद विवाह पत्रिका महादेव को भेजो। और यहाँ विश्वकर्मा को आज्ञा दी गई, विश्वकर्मा मेरे पुत्र सती का विवाह है। लक्ष्य ने कहा आप नगर की शोभा में वृद्धि, और विश्वकर्मा मंडप द्वार खड़े करने लगे, नगर की सुंदरता में वृद्धि करने लगे। यहाँ सप्तऋषि गर्गाचार्य नारद महादेव के पास पहुंचे, जो महादेव जी आपके विवाह की तैयारी आप जल्दी जल्दी करो, आपके विवाह की। भगवान महादेव ने कहा कौन मेरे विवाह की तैयारी करेंगे? न माता न पिता न बंधु न मित्र न कोई परिवार न कुटुंब न कबीला। भुवन के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित निमंत्रित करो, देव गणोदेव गण ऋषि मुनि को सबको आमंत्रित, गांधर्व किन्नरों अप्सराओं को, इंद्र इंद्राणी ब्रह्मा ब्रह्मणे विष्णु लक्ष्मी वरुण कुबेर सबको आमंत्रित करो। भुवन में सबको आमंत्रण निमंत्रण मिला है, और भगवान महादेव विवाह में सब पधारे कैलाश। इंद्र इंद्राणी ब्रह्मा बड़े बड़े मुकुट करके, महंगे महंगे वस्त्र धारण करके सभी देवता पधारे। पूरा देवता लोक आ गया कैलाश में, जैसे अंधारी रात हो, और अंधारी रात में जब आकाश की शोभा में वृद्धि करके छोटे छोटे ताराओं के टमटमाना, अंधारी रात की शोभा कौन है? ताराओं के टमटमाना, उनकी शोभा। वैसे ही कैलाश पहाड़ की शोभा बढ़ गई, देवताओं की उपस्थिति, और भगवान महादेव एक पत्थर की शिला पर बाबा दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, बिखरी हुई जटा सर्प धारण किए हुए ऐसे भगवान शंकर प्रसन्न मुखमंडल है, सबका स्वागत करे, पधारिए पधारिए सभी पधारिए, आप आइए पधारिए पधारिए। महादेव का रूप और भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसा, सर्प भस्म आंखों पर इतने तो भस्म, महादेव थोड़ी सी पापड़ ऐसे तो भस्म की विभूति की ढेर हो जाती थी नीचे, इतनी तो भस्म लगाई थी। पापड़ थोड़ी ऐसे करन तो नीचे भस्म गिरती थी, जैसे सत्य साईं बाबा को गिरती है। कई लोग सत्य साईं बाबा के नाम पर ऐसा बहुत हो रहा है, लेकिन मुझ में उसमें रुचि नहीं थी। जो उनकी जिनकी श्रद्धा मुबारक उनको, लेकिन कोई न कोई उनके पीछे विनाश होता है, उनके बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए ऐसी बातों में बहुत उलझे नहीं हो आप, थोड़े अंदर की यात्रा करो, बाहर की यात्रा छोड़ो, ये सब माया छोड़ो। मेरा महादेव इतना भयानक, इंद्र हंसने लगा। ब्रह्मा ने पूछा क्यों इंद्र इतना खड़खड़ाहट हंस रहा है? इंद्र ने कहा जो दूल्हे महाराज की दशा को देखो, कहीं वेर नहीं कपड़ा मुझे हम ना बैठो दाढ़ी नहीं करा जी। ब्रह्मा जी हंसने लगे, विष्णु भगवान विनोद करने लगे। ऐसा क्योंकि विवाह में तो ऐसा ही होता है ना, आनंद विनोद प्रमाद सब कुछ, ये सब विवाह में ऐसे होता है। तो विवाह में मजा आएगी, लग्न में मोटा चढ़ाई नाटा तो क्यों लगे बधाने नाचा चढ़ेला હોય મોટા કપડા જેવા લગ્નમાં તો મુખમુદ્રા પ્રસન્ન હસતો ખેલતો રહેવું છે। હવે કેટલું કોઈનું મરણ હોય તો ખોટ ગયા મોઢા કરીને બહે ગુજરાઈ ગયેલા ભૂલો, કોઈના મરણ ખંડમાં જાય તો ઘણા તો મરણમાં હસતા હોય છે। દાદા બહુ સારું કરીને જાઓ ભાઈ, દાદા તો દાદા ભાઈ, દાદાએ તો બહુ સારું કર્યું, દાદા તો બહુ સરસ જીવન જીવા એમ ખરો કરે, દાદા તો બહુ પુણ્યવાન હતા। सभी देवता हंसते रहे। नारद ने पूछा कि सभी आप देवता क्यों जोर जोर से हंस रहे हैं?
तब देवताओं ने कहा नारद हंसे नहीं तो क्या करे, देखो जरा दुल्हन महाराज को કેટલા સોના ચાંદીના આભૂષણો પહેર્યા, જો ખરા આવડા જાય એક સોના ચાંદીનું આભૂષણ નથી, પણ ભૂષણો 12 કંઠ ભૂષણો. नारद जरा समझाओ, वो तैयार हो जाए. नारद ने बृहस्पति जी को कहा, बृहस्पति जरा देखो महादेव का रूप. और इस बृहस्पति ने शंकर के रूप की सुंदर स्तुति की. देखने में तो महादेव बहुत कठोर है, देखने में तो रौद्र है, लेकिन तेरा हृदय तो रुद्र है. रुद्र એટલે કોમળ, રૌદ્ર એટલે કઠોર. रौद्र એટલે कठोर, रुद्र એટલે कोमल. हे महादेव, तेरे कंठ में जहर है, लेकिन तेरे मुख में से निरंतर अमृत निकलता है. तेरा रूप तो आकाश, विमान आकाश. कपरती जटाजुटधारी, कपरती એટલે ગુથાયેલી જટા, કોઈની ઘૂંસ ના નીકળે એવી જટા. દરના બાળકો તમને ઘૂંસ કાઢે આમ. હા, શંકરની જટામાંથી કોઈની ન નીકળે. દુનિયાના દાંતિયાઓ બધા મશીનો લાવવાને તમે વાળ સ્ટ્રેટ થાય જ નહીં. આને ગૂંચવાયેલી જટા, એનું નામ છે કપરતી. કપરતી એટલે ગૂંથાયેલી જટા, વણાયેલી જટા, એટલે કપરતી महादेव नाम છે. એટલે जो शब्द है वो बृहस्पति के मुख में से प्रकट हो गए. देवगुरु बृहस्पति महान शिव भक्त है. शिव भक्ति ही मूल है, बाकी सब शाखा है. मूल शिव, बाकी सब शाखा डाले डाले, मूल शिव है. बहुत सुंदर शब्द बृहस्पति के मुख में से निकले. सुरेश देवताओं में ईश्वर. व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश. केश बाल, भगवान महादेव के बाल कितने तो आकाश में फैले हुए. भगवान शंकर ने जटा जो छुट्टी की तो पूरा आकाश जटा से भर गया. व्योम केशाय नमः. पूरे आकाश में फैले हुए शंकर की जटा. शंकर की जटा अवड़ी नहीं थी, पूरे आकाश में फैले हुई मेरे महादेव की जटा. हिमालय पहाड़ पर खड़ा हो जाए शंकर और जटा खोल दे तो हिमालय पहाड़ दिखाई नहीं देगा. पूरा हिमालय पहाड़ ढक गया. इतने पूरे आकाश में फैले हुए शंकर की जटा. जब शंकर तांडव करते तो जटा के लट उनकी घूमती है तो ग्रह नहीं रहता आकाश में. पूरा आकाश एकदम स्वस्थ हो जाता है. सभी ग्रह दूर दूर तक भ्रमण करने लगते हैं. पूरा आकाश खाली हो जाता है. ग्रहों अपनी दिशा बदल देते हैं. जब शंकर एक तांडव का पग पैर पछाड़े, पूरा पूरा सर्वविनाश. विश्राम, तांडव का प्रारंभ, विश्राम, और तांडव का विश्राम सृष्टि का प्रारंभ. जब तांडव का प्रारंभ तब विसर्जन, और तांडव का विश्राम तब सृष्टि. अभी तो शंकर ध्यान में बैठे, अभी खड़ा होगा तब समुद्र धरती पर, तब हिमालय पहाड़ सागर में ऐसा उथल पाथल कुछ भी नहीं रहता. कोई ग्रह नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई अनुदिशा नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं. हे शंकर, ऐसे महादेव के रूप को मैं प्रणाम करता हूँ. दो सुंदर बृहस्पति के मुख में से प्रकट हुए शब्द हैं, लेकिन समय की पाबंदी रहती है, इसलिए उसको मैं धीरे 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 टेशन चले जाते हैं सभी. तो शिव की कथा करनी है, कथा तक पहुँचना है. तो बृहस्पति ने कहा ऐसा महादेव आपका विचित्र रूप है. विचित्र का अर्थ होता है अति सुंदर, विशेष प्रकार से सुंदर महादेव. नारद ने कहा, बृहस्पति ने कहा कि महादेव हम सब सुंदर श्रृंगार करके आए हैं, आप भी श्रृंगार करो. पीतांबर लाओ, हम आपको पीतांबर पहना. महादेव ने कहा नारद पीतांबर की क्या बात करें, एक मर्म चर्म से दूसरा नहीं है मेरे पास, बस ये अंतर है ना, मर्म चर्म एक और
दूसरा नहीं। जो कि संग्रह करके जीता है वो तो जीव है, निसंग्रह रहता है वो शिव है। कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं शिव हूं, मेरे पास कोई संग्रह नहीं है। आप जो कहते हैं तो 2 सर्प अधिक पहन सकता हूं, ये जो थोड़ा नाग ओछा पड़ता है बीजा पकड़िए ओछा थी थोड़ा गजगर पहन लो। नारद ने कहा महादेव जी आपने सती को वरदान कैसा दिया? शंकर भगवान ने कहा नारद मैंने सती को वरदान दिया सुंदर श्रृंगार करके आपके सती के वहां पर, तो श्रृंगार तो करना पड़ेगा। आप कहते हैं आपके पास कुछ नहीं। यही समय ब्रह्मा ने, इंद्र ने ब्रह्मा के कान में कुछ कहा, ब्रह्मा ने विष्णु के कान में और विष्णु ने कुबेर के कान में, पूरी बात कानपुर में चली। नारद तक पहुंचे और कहा नारद उनको पूछो भगवान शंकर को कि उनको कोई दिक्कत ना हो तो हमारी वस्तु उनको पहनने के लिए हम देंगे। नारद ने पूछा महादेव जी देवता कहते हैं कि उनकी वस्तु आपको पहनने के लिए दे रहे हैं। भगवान महादेव हंसते हैं। नारद समझ गए शिव जी क्यों हंस रहे हैं। शिव जी इसीलिए हंस रहे हैं देवता कह रहे हैं कि उनकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे रहे हैं, तो मुझे ये मालूम नहीं होता कि ये सब वस्तु उनकी कब से बन गई। मेरे पास से तो भीख मांग कर वो सब ले गए, कब से उनकी हो गई। भ्रू प्रणीता, महादेव ने अपने भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को वैभव दिया है। सुरास्ताम ताम्रमुंदे ददति तो भगवान भ्रू प्रणीता, महादेव ने अपने इशारे मात्र से देवताओं को वैभव दिया है। देवता कह रहे हमारी वस्तु आपको पहने, लेकिन महादेव मौन है। और सज्जनों का स्वभाव है मौन। सज्जन कभी बोलते नहीं, सभी बोलने में कभी जल्दी नहीं करते। बोलने की आदत होता है कौवे को मेढक को मेढक, डेढ़काओ कोयल तो कभी कभी बोलते हैं, और मयूर तो कभी कभी बोलता है। मयूर टमका मारता है, लोग को पाँव बोल कर देते हैं। कोयल, मयूर, मैना बहुत कम बोलते हैं, सज्जन लोग कम बोलते हैं। सज्जनता की पहली पहचान है मौन रहना। मौन रहना ये सज्जन की पहली पहचान। भगवान शंकर नहीं बोले, मौन रहे और हंसते रहे। और कहा नारद जी को कोई बात नहीं नारद, उनको कहो उनकी वस्तु पहनने के लिए। नारद ने कहा आप उनकी वस्तु, आपकी वस्तु पहनने के लिए दो। विष्णु भगवान ने पीताम्बर दिया, ब्रह्मा जी ने केस दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, कुबेर ने सोना चांदी हीरे मोती के बहुत सारे आभूषण दिए और भगवान शंकर को सजाया। और नारद ने कहा भस्म दूर करो। महादेव की भस्म दूर की और नारद ने कहा इस सर्प को भी दूर कर दो। भगवान शंकर ने सभी सर्प निकाल दिए और जटा में सर्प थे वो भी निकाले। कोई कोई तो जटा में सर्प थे, कोई सर्प ऊपर जा रहा था पकड़ लिया, कोई सर्प नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था पकड़ लिया, कोई सर्प गले में इस सर्प को निकाला इस भाव से दूसरे भाव पर, पूरे ऊपर कोई धरती पर जा रहा था, कोई धरती पर से अंग पर आ रहा था, पूरा सर्प से अंग भरा था। सर्पालय, सर्पों का निवास स्थान, व्यालाय व्यालानाम पतिये नमः, व्याल प्रियाय नमः। ये भगवान महादेव के व्याल का अर्थ होता है सर्प, व्याल प्रिय, जिनको सर्प बहुत प्रिय है। सर्पों के पति है, सर्पों में ईश्वर है, खुद सर्प है। नाग, नागलोक का स्वामी भगवान शिव। वासुकी, छोटा सा नाग नहीं धारण करते, वासुकी नागों का राजा भगवान महादेव कंठ में धारण करते हैं। जो साफ काल है, काल, उनको डंक मारना नहीं पड़ता, वासुकी को डंक मारना नहीं पड़ता। वासु एक फुफकारा से किसी की जान ले सकता है। ये वासुकी, वासुकी नाग को कभी डंक मारना नहीं पड़ता। वासुकी की दृष्टि मात्र काफी प्राण ले लेती है। इतने जहरीले सर्प गले में धारण करते हैं। जिनके कंठ में ऐसे जहरीले सर्प रहते हैं उनको काल क्या क्या डर होता है। वो तो काल का काल महाकाल भगवान शंकर है। महादेव, महादेव को छोटी देव नहीं है। कभी महादेव को छोटी दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए, आपका पुण्य कब खत्म हो जाएगा। मेरा शंकर तो देव का देव, देव का देव महादेव। महादेव ने सर के साथ निकाली, इतने जटा फैले, जटा में सर गुजराती में कहो तो 500-600 वर्ष जूनो को वडलो હોય, વડવાયો ફેલેલી હોય, વડવાયોમાં સરપ હોય, વડવાયોમાં સરપ હોય, નાના નાના સરપ હોય, એ રીતે શંકરે જેટલા બધા સરપ હોય, મહાદેવ ખેંચી ખેંચી કાઢ્યા સરપ, ભગવાન શંકર સરપ પેલો ઢગલો સરપો પણ કહેવા લાગે તો ભગવાન શંકર કેમ આજે બધા તો આજ બેંક હોલિડે જાઓ તમારે રજા, શનિ રવિ રજા। અને મહાદેવે પછી તો તૈયાર પીતાંબર શ્વેતાંબર અને બાબા का श्रृंगार, सुंदर मुकुट, भस्म दूर करी तो भगवान शिव जी का मूल रूप दर्शन हो गया।
मेरा महादेव श्याम नहीं, मेरा महादेव तो गोरा है ने, शंकर गोरे है, शंकर गोरा है। इसलिए तो आरती में गाते हैं ना, कर्पूर लक्ष्मीकांतम, विष्णु विष्णु श्याम, कालो कन्हैयो द्वारकाधीश, कालो पण कामण गालो। कृष्ण जरूर वो तो काला है, विष्णु श्याम, मेरा शंकर गोरा है। कानून कालो कालो राधा से यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा गोरी मैया भाला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा गोरी मैया यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा गोरी मैया
गुजराती गुजराती आरती कैसे गाते हैं? ओम जय कान्हा जय काना 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 नहीं काला સાંભળે કે સમજે કે એને બોલે પગમાં ઉંદર બાંધીને શિવ તાંડવ નાખે. ઉંદર ઉંદર નહીં ને ઘોઘર ઉંદર નહીં. પગમાં ઉંદર બાંધીને અરે પગમાં ઉંદર ઘણી વાર બોલાતું કાંઈ સમજાતું કાંઈ પછી બોલે એ રીતે પછી भगवान महादेव अद्भुत जन जिनका जीवन चरित्र है. भगवान महादेव सुंदर श्रृंगार महादेव देवताओं का जयकार किया. महादेव पधारे नंदी के निकट और सभी देवताओं ने मिलकर नंदी को सुंदर श्रृंगारा था. बाबा नंदी पर मंगल गीत मंगल मंत्र बोलकर वाद्य गीत संगीत नृत्य आनंद विनोद के साथ भगवान पहुंचे. अनेक आनंद विनोद के साथ प्रदेश नगर के द्वार नगरवासियों ने स्वागत किया. प्रभु पधारे विवाह मंडप के द्वार. दर्गाचार्य महाराज ने मंत्रों बोलकर सुंदर वातावरण को पवित्र कर दिया. दिव्य वातावरण बना दिया मंत्रों के उच्चार से. मंत्रों से क्या होगा? वातावरण में पवित्रता आ जाएगी. मंत्र बोलने से क्या होगा? भीतर की पवित्रता आ जाएगी. मंत्र क्या होता है? वातावरण को पावन कर देता है, जीवन को धन्य करता है. यह मंत्र मन को पवित्र करने वाला मंत्र. सुंदर स्वागत कर रहे हैं. भगवान का स्वागत हो. विवाह मंडप में प्रभु बधाई. हंसता खेलता पात्र नारद दक्ष को कहने लगे, दक्ष बहुत भाग्यवान है तेरे वहां पुत्र का जन्म हुआ तो तुझे आगे कन्यादान करने का अवसर मिलेगा. जिनके वहां पे पुत्र नहीं होती उनको कोई कन्यादान का अवसर नहीं मिलेगा. धन्य तो है दक्ष, धन्य तो है दक्ष. बाप पिता धन्य तब होता है जब वो कन्यादान करता है. और सती विवाह मंडप के अंदर पधारे और पुष्पमाला विराजमान, अंगुष्ठ की पूजा, मिलन, हस्तमेला, कन्यादान, सुंदर सुंदर मंत्रों के साथ शिव और सती का विवाह. अग्नि की उपस्थिति, मंगल फेरे हुए. और बाद में दक्ष गिरने ने मिलकर सभी ने भगवान शिव और सती को विदा दिया और शिव सती का विवाह होकर कैलाश द्वार पधारे. विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया और प्रभु पधारे कैलाश में. सभी देवताओं ने परिक्रमा करके जयकार किया और भगवान व्यास ने कहा जो कोई मानव भाव भक्ति और आदर के साथ शिव और सती के विवाह की कथा का श्रवण करे तो उनका वो उनके परिवार का मंगल होगा. ये कथा मंगल करने कथा, मंगल करने उनका परम मंगल होगा. जो ये कथा का कोई श्रवण करे. श्रवण मात्रेण मंगलम सर्व मंगलम. कथा श्रवण मात्रेण. और सभी देवता अपने अपने लोक में गए और बाद में शिव सती का सुंदर विहार, सुंदर कथा है. और भगवान महादेव शिव और सती कुंभज के द्वार गए. कुंभज ने बड़ा स्वागत किया. त्रेता युग राम कथा सुनी था. राम कथा, राम कथा मुनि वर्ग बखान. और रामचरित करा रामचरित राम कथा Sorry, my
क्या हुआ? परम सुख। सुख नहीं, परम। परम किसको कहते हैं? जिनका कोई विराम नहीं होता, उनको परम कहते हैं। परम सुख, निरंतर आनंद, निरंतर आनंद। इसलिए धन्य वो मानव है जिन मानव को श्रवण प्रीति ही लालसा, जिनको श्रवण की प्रीति रहती है, कथा सुनने की प्रीति, जो कथा प्रेमी होता है। कथा प्रेमी का दूसरा नाम क्या होता है? कथाव्रती। उनको कथाव्रती कहा गया है। इसलिए बहुत आदर के साथ कहता हूँ, जब अवसर मिले तब धर्म पुराणों का पाठ पठन करना चाहिए। अवसर मिले तब सुंदर सुंदर वक्ताओं के वक्तव्य सुनना चाहिए। आजकल तो कितना टेक्निक लोग युग आ गया है, यूट्यूब खोलो, जो चाहे उनको सुन सकते हो आप। लिखो मुरारी बाबू तो मुरारी बाबू कथा करने लगेगी आपके सामने। लिखो रमेश देवोजा तो आपके सामने वो हाजिर हो जाएंगे। लिखो अवधेशान गिरी जी वो हाजिर हो जाएंगे। लिखो प्रेम भूषण जी वो हाजिर हो जाएंगे। राम बोलो यूट्यूब। कितने कितने वक्ता हैं, कितने प्रवचन होते हैं। आजकल तो पढ़ने के लिए आपको तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आपके बिस्तर के साथ 5 कोई का टैबलेट पड़ा होगा, खोलो दुनिया का खजाना निकलेगा। जिसको सुनना है उनको सुन सकते हैं आप। कितना कितना खजाना है, कितना खजाना है। अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनो, अच्छे अच्छे विद्वान वक्ताओं को, जिनने पुराणों और शास्त्रों को दोहन किया है, दोहना पड़ता है उनको। कई लोग श्रीमान पढ़ते हैं तो उनको रस नहीं पड़ता है, उनको मुझे दोहन करना पड़ता है, इनमें से नवनीत निकालना पड़ता है। बहुत कठिन पुराण है। और वेद तो किसी के समझ में नहीं आता है। वेद पढ़ने की वस्तु नहीं, वेद तो सुनने की वस्तु है। इसीलिए वेद को क्या कहते हैं? श्रुति होते हैं ना, श्रुति ग्रंथ कहते हैं। श्रुति इनको सुनने का है वेद। नहीं संत श्रुति संत होते हैं, जिन्हें बहुत सुना है, बहुत सुना है। वेद के छोटे 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 श्लोक होते हैं, लेकिन इनमें पूरा पूरा बहुत सारा व्याकरण होता है, विवरण होता है। इसलिए बहुत आदर के साथ मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग, वक्ताओं को सुनते रहो। बहुत बहुत वक्ता है भारत देश में, प्रदेश की धरती पर, तो उनको सुनना भी बहुत असंभव रहता है। ऐसे वक्ता देश में विद्वान संत है, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करके दुनिया को बहुत कुछ देते हैं। और एक बात मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई दाता है ना, तो गाय की, अन्न की, वस्त्र की जो दान करते उनको दाता नहीं, श्रेष्ठ दाता का दाता वो है तो निरंतर वक्तव्य देता है। दाता हो तो कथा का चरित्र लोगों तक पहुंचाते हैं, ये सबसे बड़ा दाता है। उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं होता, उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं होता दुनिया में। निरंतर पुराणों को, वेदों का संदेश लोगों तक पहुंचा देता है, दूर दूर तक संदेश पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ा दानवीर होता है। कथा पर तो कोई दान नहीं कर सकता, तो जो कथा कर लोगों को, दुनिया को दान करते हैं ना, ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं, बहुत कठिन है। पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना, मनन करना पड़ता है, तब ये सब निकलता है। शब्दों की हार माला, जैसे पुष्प की माला बना तो वैसे शब्दों की माला बनती है। मेरे शंकर ने कथा सुन क्या कहा? परम सुख, परम सुख। इसलिए सुख कहाँ से मिलेगा? सत्संग, हरि भजन, सत्कर्म, परोपकार, दूसरों का हित, शुभ चिंतन, कल्याण का चिंतन, उनको सुख मिलता है। इसलिए इस सभा में आप सब जो बड़े बड़े उम्र वाले बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ तो युवान भाई बहन कथा में बैठे, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। जितने जितने युवान भाई बहन बैठे, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ से युवान भाई बहन बहुत सारे बैठे, हम कथाओं से कथा सुन रहे हैं। क्या मिलेगा? परम सुख। आइए और एक बार बोलेंगे हम, रामचरित की सभा, रामचरित राम कथा सुनकर, राम कथा मुनि भरत जगतारी, सुनि महे सत्तानंद सुख राम कथा मुनि भरत जगतारी।
भक्ति का वरदान दिया। कहत सुनत रघुपति कुछ दिन रहा बोले भगवान शंकर, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, मेरे महादेव का नाम है गिरिनाथा, गिरिनाथ। और आगे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में विदा मांगी, मैं जा रहा हूँ आपके मुख से कथा सुनकर मैं धन्य हो धन्य। त्रिपुरारी ये भगवान महादेव का नाम है। पूरा त्रिपुरारी चरित्र है जिनने 3 पुरों का दहन किया। तारकासुर के 3 पुत्र विद्युमलिकम तारका, उनको जलाकर भस्म कर दिया, इसलिए महादेव का नाम है पूर्वमथन त्रिपुरारी। एक एक नाम के पीछे एक एक कथा पड़ी, एक एक नाम के पीछे एक एक इतिहास। ये महादेव का चरित्र है, गहन चरित्र है, आनंद देने वाला है। भगवान शिव सभी गए, त्रेता युग चल रहा है, राम जी आ रहे हैं, भगवान का दर्शन हो गए और मेरे महादेव के मुख में से शब्द प्रकट हो गए, शंकर के मुख में से शब्द रहा नहीं गया, देख लिया प्रभु को और कह दिया आपकी कथा सुनकर मैं आ रहा हूं और आपका दर्शन हो गया। तो दिल से हृदय से जो कथा सुनते हैं उनको कथा के बाद यही 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 निरंतर सुनाई देता है और रात में निमित्त यही आएगा, भगवान ही आएगा। जो दिल से हृदय से लगाकर कथा सुनते हैं उनके सपने में कभी बुरे सपने नहीं होते, उनके सपने सृष्टि में सुधर जाती है, उनके दिल में हृदय में विचारों में वाणी में सभी पर शिव हो जाता है। जो हृदय से कथा सुनते हैं, अंतकरण से, करना से नहीं अंतकरण से जो कथा सुनते हैं। आज महादेव ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया और बाबा के मुख में जो शब्द निकले जय सच्चिदानंद जय भगवान को कौन पहचान सकेगा? जिनके हृदय में सत्संग हो। भगवान को पहचानने का साधन ही सत्संग है। जीवन को बढ़ने के लिए ही सत्संग है, जीवन का मूल सत्संग है, आत्मा का खुराक सत्संग है। जैसे शरीर को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए सात्विक भोजन करना पड़ता है, इसलिए आत्मा को पुलकित रखने के लिए एक घड़ी आधे में बुनियाद सत्संग करो, आत्मा पुलकित रहे। जिनके जीवन में भरपूर सत्संग रहता है कोई भगवान को पहचान जाए, बाकी कोई भगवान को पहचानने वाला नहीं होता। भक्ति ने बातों जनक फिल्म कहेंगे, बहुत प्राचीन भजन है, बहुत जूना भजन है, जो आपको मजा आएगा। नितेश, ये भजन बहुत जूना भजन है। भक्ति नी बातों जना दिल मार मेरी, भक्ति नी बातों जना दिल मार भक्ति
चित्र दिया था, मन में दिया था, कथा में। आप कथा से परिचित हैं, विशेष कथा में वो डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सती गए, महादेव ने कहा जाओ आप कसौटी करके आओ, परीक्षा करके आओ। सती गई, सीता का रोक लिया। राम और सती का सुंदर संवाद है शिव महापुराण में। बाद में आए शिव जी ने पूछा क्या हुआ, कछु न परीक्षा लेने बस मैं तो प्रणाम कर नाम के रहे शंकर मन में तो आए के पूरे लगे લીધું તો હું વાંધો હતો। बहुत विस्तार वाली कथा है। अंत में भगवान महादेव ने सती का त्याग कर दिया, क्योंकि सती ने सीता का रूप लिया। इसलिए मन ही मन त्याग, देवताओं ने जयकार किया। शिव और सती पहुंचे कैलाश। सती पूछे इससे पहले बाबा ध्यान सत्या से 1000 साल बीत गए और सती ने क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर, अपरंपार प्रभु। बहुत सुंदर भजन भी पढ़ गया ना। अपरंपार प्रभु अवगुण मोरा, माफ करो बाबा कथा कहने लगे। यही समय दक्ष ने यज्ञ किया, आकाश में देवता जा रहे हैं। सती ने पूछा कि देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कथा में जाना। कथा कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, अरे छोड़ो ये सब संसार के झंझट, आप कथा में चित्त रखो, ध्यान दो। लेकिन नहीं कहा मुझे कहो। शिव जी ने कहा कि आप सुनेंगे तो आप दुख हो जाएगा आपको। आपके पिता को बड़ा अभिमान आ गया, अति अभिमान हृदय करवा। आपके पिता दक्ष को बहुत अभिमान है, इसीलिए यज्ञ का आयोजन हुआ। हम सबको आमंत्रण निमंत्रण, सबको आमंत्रण निमंत्रण, लेकिन आपको और मुझे आमंत्रण नहीं मिला है। सती ने कहा मुझे जाना है। शिव जी ने कहा कही तो अभी सती जाने के लिए तैयार हुई। बाद में असंख्य गणों को सती की रक्षा के लिए भेजा, लेकिन शंकर ने कहा जब काल निकट आ जाता है तब कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। शंकर का मैं भी कैसे रक्षा करूं? और सती गए कैलाश, शिव का सानिध्य छोड़कर गए। जब जीव शिव का सानिध्य छोड़ता है ना, तब उनकी दुर्गति होती है, उनकी कभी सदगति नहीं होती। सती जो शिव के सानिध्य में रही होती थी, जब नहीं होता है। शिव जी ने आज शिव जी का सानिध्य छोड़ दिया सती ने। महादेव ने कहा नहीं यहाँ रहो, तो अभी शिव की बात नहीं मानी। आज सती गए और शिव जी को 3 काल के मालिक है, जो बीत गया, बीत रहा है, वो बीतने आने वाला है। सब तीनों काल का ईश्वर भगवान महादेव ने त्रिकाल, सब को जानने वाला है। क्या हो गया वो भी उनको याद है, और क्या हो रहा है वो भी ज्ञात है, और क्या होगा ये सभी शिव जी। महादेव तो जानते हैं कि सत्य गए, वापस आने वाले नहीं है। अब तो शिव जी को मालूम है, अब तो बस समाधि लगाना है, भजन करना है, भजन करना है। एक पंक्ति बोलो।
सती पहुंची प्रदेश नगर में और नगरवासियों ने अपमान किया। अरे सती, आपको तो आमंत्रण निमंत्रण नहीं। सती का कदम भारी हो गया। ओह मेरे पिता के वहां मुझे निमंत्रण नहीं। शंकर ने तो सत्य कहा, वास्तव में वो सत्य। सती पिता के आंगन में गए, सब मेहमान लोग आए और लोगों भी अपमान करने लगे। बिना आमंत्रण सती और मेहमानों के बीच बैठी हुई माँ वीरणी। दुनिया के सभी का प्रेम अस्त हो जाएगा, लेकिन माँ का प्रेम कभी अस्त नहीं होता, कभी नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ माँ ही है। माँ और बेटी दोनों प्रेम से गए। गुजराती में कहूँ तो एक बीजा बापर माथું નાખી મળે છે। ઘણા લોકો આવે કથામાં નામ મળે, પછી સાચો પ્રેમ ખોટો ભગવાન જાણે। આમ કરીને મળે, કારણ કે આમ કથામાં મળતા ને, બાકી તો કોઈ આમાં મળતા જ નથી। એકબીજા બધ ભરી મળે, એને પ્રેમનો દરિયો રેલાતો હોય। माँ और बेटे दोनों एक बीजा खंभा पर माथું નાખી રહ્યા છે। माँ ने કહે, बेटा सती, तने आमंत्रण નથી આપ્યું, પણ મને ખબર હતી બેટા તું આવીશ। મારો પ્રસંગ તારા વગર અધૂરો લાગ્યો। माँ તો माँ, પ્રેમનું કોઈ પ્રાગટ્ય સ્થાન હોય તો माँ છે, અને પ્રેમનું કોઈ સાકાર રૂપ હોય તો એ પણ माँ છે, અને પ્રેમનો પ્રારંભ હોય એ પણ माँ છે, અને તીર્થનું કોઈ મૂળ હોય તો માં છે, અને શબ્દનો કોઈ મરમ હોય તો એ માં છે, અને માથી મોટો કોઈ પવિત્ર શબ્દ પણ નથી, એ છે માં। આપણને જે કામ રહ્યું છે ને એ માના સંસ્કારો છે। માના પેટમાં હતા ત્યાંથી આ સંસ્કારો આપણને હવે મળ્યા છે। તેથી આપણે સૌ ભગવાનની કથામાં બેસીએ છીએ, પ્રભુના નામ લઈએ છીએ, સત્કર્મ કરી, પુણ્ય કર્મ કરી, ભગવાનનું ભજન કરીએ છીએ, પરોપકારના કાર્યો કરીએ છીએ। આ છે માની મોટી ભેટ, અને એને જ વંદનીય માં કહે છે। જેમના સંતાનો પરમાત્માના ભક્ત હોય, જેમના સંતાનો સરળ હોય, જેમના સંતાનો પરોપકારી હોય, જેમના સંતાનો સેવાભાવી હોય, જેમના સંતાનો સત્સંગ પ્રેમી હોય, જેના સંતાનો પ્રભુના પરમ ભક્ત હોય, એવી માની વંદનાઓ કરે છે। માની વંદના નથી, માં તો બહુ હોય દુનિયામાં, પશુમાં માં હોય, પંખીમાં માં હોય, માનો ક્યાં તોટો છે? પણ વંદનીય માં આવો છે, જેમાં પોતાના સંતાનોને સતમાર્ગે લઈ જાય છે, એ માં ધન્ય છે, એ માં ધન્ય છે। જે કાંઈ તમારી ઉપસ્થિતિ છે ને એ માની કૃપા છે। કોઈ ને કોઈ રીતે માએ તમને સંસ્કાર આપ્યા છે, તેથી તમારા અહીં સુધી આગમન થયું છે। બાકી સંસ્કાર ના આપે તો 8 વાગે હાલે, 8 વાગે પાછા મને પૂછે જમવાનું ક્યાં છે? મારે તો પરિબાપુ ત્યાં છે। મને કહેતા પૂછે જમવાનું ક્યાં છે? મેં કીધું મારું તો પરિબાપુ ત્યાં છે ભાઈ, તમારું ક્યાં જમવાનું મને ખબર નથી। અરે શરમ આવી જોઈએ, શરમ આવી જોઈએ। હું અહીં તમને કથા કહેવાયો, વિમાનમાં બેસી રહ્યો છું, તમને કથા માટે આવ્યો છું, મેં તમને ચરિત્રો ખોલી ખોલી કહેવાય અને તમે ટાણે પહોંચો, દરેક તો શરમ આવી જોઈએ નહીં આપણને। ક્યાં તમારી પાસે 24 કલાક તમે લેવા માટે આવ્યા? તમારી પાસે 3 કલાક લેવાની છે ભાઈ, 1 કલાક તમારી મુસાફરી, બહુ 4 કલાક, કમસે કમ 4 કલાક આપો તમે। મારો ઇન્ટેન છે, લોટનથી આવે છે તો કહેતો બાપુ મેં પૂરી કથા સાંભળી, પણ ઘણું બધું મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું। મારો ધ્રુવ નિરંતર કથા સાંભળે, ભાઈ નિતેશ રવિ, આ છોકરાઓને જેટલો સમય મળે તો કથા સાંભળે, અને હું ઘણાને જોઉં છું ટાણે આવે, આવું સારું ન લાગે। અને બહુ આદરથી એક સાધુ તરીકે કહું છું, કાંઈ પણ આપણા હિન્દુ સમાજના કાંઈ કાર્યક્રમ હોય એમાં સમયસર હાજર થવું। અને જાજર લાગે હું જોઉં છું કે લોકો આ ટાણે જ આવે છે, એ આપણને શોભે નહીં ભલામણ, આપણને સારું ન લાગે, આપણને સારું ન લાગે। એક વાર એક કામ અમારે કરતા તો હું બહાર નીકળ્યો તો મને એક દંપતી આખું કુટુંબ જ આવેલું, તો મને કે અહીંયા જમવાનું ક્યાં છે? મેં કીધું જો કમંડળ જાય છે ને, કમંડળને ફોલો કરે છે, પેલું કમંડળ હોય ને, તો કમંડળ જાય છે ને ત્યાં તું જાય।
એટલે કમંડળ તને જ્યાં લઈ જાય જો જમવાનું હશે તો કમંડળ રસોડામાં જશે, જમવાનું ખાલી થઈ ગયું છે કમંડળ ત્યાં વાસણ ચડ્યા છે ત્યાં નહીં સારું ન લાગે. તો સત્સંગ જેટલો સમય મળે એટલો સમય, અને આ માની કૃપા છે. કોઈ ને કોઈ રીતે તમારા હૃદયમાં જો ભરપૂર ભગવાનની ભક્તિ હોય તો આ માની જ કૃપા છે. મારું મન એમ કહે છે લાવ એક પંક્તિ હું ગાઈ લઉં. મારું મન એમ કહે છે એક પંક્તિ ગાઈ લઉં. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भारी है, ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ शब्दों का ध्यान रहे, जो कुछ है शब्दों की मजा है, शब्दों की मजा है. अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति. माँ बच्चों की चार होती है, माँ बच्चों की चार होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है. कितनी सुंदर कितनी शीतल है, प्यारी है, ओ माँ.
બહુ આદરથી કહું છું, બહુ આદરથી કહું છું, તમારા ઘરમાં વડીલો હોય તો તેને સમય આપજો. તમારા ઘરમાં વડીલ હોય તો તેની સેવા કરજો. તમારા ઘરમાં વડીલ હોય તો તેના પગ દબાવજો. અને બહેનોને કહું છું, તમારા ઘરમાં વડીલ માજી હોય ને તો તેના માથામાં તેલ નાખી દેજો. તેના માથામાં તેલ માથું દબાવી દેજો. અરે રામ કે કૃષ્ણના મંદિરમાં ટોટો કાઢ્યા કરો ને, રામકૃષ્ણ તમારી આમ કોઈ બી નહીં બોલે, અરે મારો શંકર પણ નહીં બોલે. તમારા ઘરના વડીલની સેવા કરશો ને, નાભીમાંથી આશીર્વાદ દેશે કે સુખી થા બેટા, સુખી થા, સુખી થા. આ દુનિયામાં કોઈ તમારો વાળ નાખો નહીં કરી શકે. જો મા બાપની સેવાનું માથું તમારે ચાલે, દુનિયાના આસમાનના તારા તોડી શકો તમે, જેની સાથે મા બાપની સેવા હોય, જેની સાથે મા બાપની સેવાનું ગુણ ન હોય. આજે માણસ ચૂકી જાય છે, માણસ ભૂલી જાય છે, બહુ ભૂલી જાય છે. પત્નીને મારો ગોળે મારતા ન ભલે. તમારું કર્તવ્ય છે વડીલો મા બાપની સેવા, તમારું કર્તવ્ય છે, તમારું કર્તવ્ય છે. અમુક પુરુષો તો એટલા પત્નીથી ડરી ગયા છે, એટલા ભયભીત ગયા છે. આ ધન્ય છે. રોજ પોતાના માને લઈને આવે, રોજ માને. મેં ઘણી વાર કથામાં વાત કરી. મેં એક રૂપાલ કંપા ગયો હતો, હિંમતનગરની બાજુમાં રૂપાલ કંપા. તો એક બેન રોજ એક બાને તેડીને કથા સાંભળવા લાગે. રોજ એક બાને તેડીને રોજ પૂછે. ત્યાં તો બહુ મોટી સભાઓ હોય, નજર મૂકે ક્યાંથી માણા હોય, ખબર ન પડે કોણ બેઠું છે. તો એ રોજ એક બેન આવે ઉચકીને માજીને અને બેહાડીને કથા કરવાના. રોજ પાછા ઉચકીને ઘરે લે છે. જેમ બાળકને તેડીને આવે એમ યાદ બેન આવે ગઢાબાને તેડીને લકડી કાયા બાની કથા. એકદમ બરોબર મને ભેટો કીધું, આમ ગાડી ચડી બરોબર આમ. મેં કીધું ઉભે મેં કીધું ગમે છો બેન? મેં કીધું રોજ આ બાને કથામાં લાવો છો, આ બા કોણ છે? તો પેલી બેને કીધું મારી સાસુ છે, એની કથામાં લાવું છું, મારી સાસુ છે. આવી પુત્ર વધુને મારા નમન છે, આવી પુત્ર વધુને મારા પ્રણામ છે. આને પુત્ર વધુ કહેવાય, બાકી તો વધુ ગાય હોય. તો હવે તમારો સમય નથી લેતો, 8-10 મિનિટની વાર છે. ઘડિયાળ ખોખારા મારે, ઘડિયાળ ખોખારા મારે ભાઈ. એક પર જીવનમાંથી ખેંચાઈ જાય છે. હાથમાંથી સમય સરી જશે ભાઈ, સમય સરી જશે. જીવનનું મૂલ્ય સમજો, એક શ્વાસનું મૂલ્ય. પહેલે દિવસે કહી દીધું, નળ બંધ કરી દો તો પાણી બંધ થઈ જાય, ઘડિયાળ બંધ કરી દો તો સમય કોઈથી બંધ નહીં થાય. સમય કોઈનો કોઈ રોકાણ નથી, એટલે સમયમાં રહે, સમયમાં. તો આવો 1-2 મિનિટ માટે કોઈ સરસ કીર્તન કરીએ. શું કરવું છે? ભોળાને પ્યારો તમારો છે. ભોળા અમને પ્યારો છે તમારું ભજન. ભોળા અમને પ્યારો છે તમારું ભજન. હંમેશા રટું છું, હંમેશા રટું છું.
અંતિમ દિવસે કથાનું શ્રવણ કરે તો એમને પૂરી સાધનાનું ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. તો આવતીકાલનો આપણો કથાનો 7મો દિન છે, કથા વિરામ છે અને કથાનો સમય 9:30 થી 11:30 છે. કારણ કે આવતીકાલે કથા સવારની રાખી છે અને શનિવાર પણ છે. ભેગા આપણે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ પણ કરીશું અને સુંદર બાકી રહેલી કથાનું દર્શન કરીએ અને અંતિમ શ્લોકમાં ભગવાન વ્યાસના આશીર્વાદ હોય છે. એ શિવ મહાત્મા જ્યારે પૂર્ણ થતું હોય ત્યારે ભગવાનના આશીર્વાદ હોય છે તેની અંદર. તો એ બહુ મહત્વનો સમય હોય છે. અંતિમ દિવસ બહુ મહત્વનો હોય છે. તો હું આશા રાખું છું કે આવતીકાલ માટે તમે સૌ વહેલા ઊભા થઈ જશો, વહેલા ઊભા થઈને જલ્દી 9 વાગ્યે પહોંચી જશો એવી આશા રાખું છું. અને હું સમયસર 9:30 સમયસર કથાનો પ્રારંભ કરી દઈશું અને સમયસર 11:30 કથાનો વિરામ કરી દઈશ. કારણ કે મારે તે જ દિવસે લેસ્ટર કથાનો પ્રારંભ કરવાનો છે. તે જ દિવસે બપોરે કથા વિરામ કરી હું અહીંથી સીધો લેસ્ટર જતો રહીશ અને 4 વાગે પહોંચી જઈશું અને કથા રાઈટ 5 વાગે શરૂ થશે અને કથા આસ્થામાં પછી પ્રસારણ છે આસ્થા ટીવીમાં. એટલે બધી દુનિયાની અંદર કથા સાંભળી શકશું. એટલે આપ કોઈ પણ બીજા કોઈ દેશમાં રહેતા હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇન્ડિયા, આફ્રિકા, કેનેડા, અમેરિકા, કોઈ બી દેશમાં, યુરોપના કોઈ પણ દેશમાં, તો ત્યાં લેસ્ટરની કથા વિશેષ પ્રસારણ રોજ માટે 3 કલાકની કથા થવાની છે. અને મને કહેતા આનંદ થાય છે મારી લેસ્ટરની કથા ગુજરાતીમાં છે. મજા પડે. પ્રજાપતિ હોલમાં છે, પ્રજાપતિ હોલ છે ને ત્યાં લેસ્ટરમાં બહુ મોટો હોલ છે, બહુ મોટા માણસો બેસી જાય, બહુ જગ્યા છે. તો આવતીકાલ કોઈ કથા કરે લેસ્ટરમાં તમારા કોઈ હોય તો તેને કહી દેજો કે કથામાં આવે. 9 દિવસની કથા, 7 દિવસની 9 દિવસ. મને ખોટું મેદાન મળવાનું છે 9 દિવસ માટે. તો લેસ્ટરમાં કોઈ તમારા સગા સંબંધી રહેતા હોય તો તમે ફોન કરી કે આજે સાંજે થોડોક સમય લેજો અને થોડી ભક્તિ ફેરી કરજો. 10 ફોન કરજો. લેસ્ટરમાં હોય, આજુબાજુના ગામડામાં હોય તેને કહેજો કે પ્રજાપતિ હોલ લેસ્ટરમાં ગિરિબાપુની શિવ મહાત્મા કથા અને ગુજરાતીમાં છે. કથાનો સમય 5 થી 8 વાગ્યાનો, 8 વાગે પાછું એ તો ઝપટગીરી એ બધું છે જ. એટલે તમે આવજો પણ અને સૌ આજુબાજુના સૌને આમંત્રણ આપજો. આવતીકાલે કથાનો વિરામનો દિવસ છે. સમય યાદ રાખજો 9:30 થી 11:30. આશા રાખું છું તમે સૌ આવજો. છેલ્લા દિવસમાં બહુ મહત્વ હોય. થોડાક પહેલા ઉભા થઈ જજો, કાલના દિવસ માટે જરૂર તમે આવજો. તમને ખૂબ આનંદ આવે છે. અંતિમ દિવસની કથાનો બહુ મહિમા હોય છે. તો દરેકને હૃદયથી કહું છું અને કથાને વિરામ આપવા જઈ રહ્યો છું ત્યારે બહુ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. મારા જજમાન શ્રી રિકેશભાઈ અનિતાબેન એ આ કથાના જજમાન છે. એમના 6 સંતાન શિવાલી, રાધિકા, કેશવ, રાઘવ, ઈશાન, તુલસી. આટલી મેં યાત્રા કરી. મને પહેલું યંગ દંપતી એવું મળ્યું કે જેમને 6 સંતાનો છે આ કલયુગમાં. બહુ આનંદ થયો અને બહુ હૃદયથી પ્રાર્થના કરું છું કે તમારા 6 સંતાનો ભગવાન શિવના ભક્ત બને અને ખૂબ તંદુરસ્ત રહે, લોકોનું કલ્યાણ કરતા રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. બહુ આનંદ થયો. તો રાયચરા પરિવાર આ કથાના મુખ્ય જજમાન રહ્યા છે અને આજના જજમાન છે રમેશભાઈ શોભનાબેન પટેલ અને ડાહીબેન મિસ્ત્રી. ડાહીબેન રસોઈ બનાવે, ડાહીબેન રસોઈ બનાવે છે. ડાહીબેન એ રસોઈ બહુ સરસ સ્વાદિષ્ટ. ગયો હતો આપણા ગુરુદ્વારામાં રસોઈ બનતી હતી, બધી બહેનોને ત્યાં મળ્યો હતો ગુરુદ્વારામાં. અને હું તો બહુ આશા રાખું છું હવે 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછી પાછો પરિવાર જો વિનોદભાઈને લાવે તો આપણે નવા હોલમાં જવું, જે આપણે મંદિર બનાવવાનું છે, મંદિર નિર્માણ કરવાનું છે, સુંદર હોલ બનાવવાનો છે. સુંદર ત્યાં લગ્ન થઈ શકે, મેરેજ થઈ શકે, નાના મોટા ફંક્શનો થઈ શકે. હોલ બને ત્યારે એ હોલના ઓપનિંગમાં મને લાવજો. સરસ ભગવાનની કથા કરજો. આપણે બાકી રહેલા ચરિત્રો બધા ત્યારે કહીશું. જેટલી કથા મારે છૂટી ગઈ છે એ કથા હું ત્યારે કહીશ. હવે પછી મને આવવાની શરત ત્યાં અને બિલકુલ નિસ્વાર્થ હું આવીશ, તમારા માટે આવીશ. બિલકુલ નિસ્વાર્થ. બાજુમાં ઉભા છે મારે અશ્વિનભાઈ પટેલ પ્રોલી. અહીં પ્રોલી રહે છે, મધ્ય ગુજરાતના છે અને ખૂબ મને સેવા આપે છે અને પૂરું જીવન મને અર્પણ કરી દીધું છે. પૂરું જીવન મને અર્પણ કરી દીધું. અને અહીં 10 કથાઓનું સંચાલન કરી રહ્યા. 5 કથા, 5મી કથા પૂરી થાય છે. હવે પછી 5 કથા છે. એ આયોજકોને સમજાવવા, વ્યવસ્થા ઉભી કરી, રસોઈની જવાબદારી, બધી જવાબદારી, આખું કથાનું ઓલ ઇન્ટરનેશનલ બધી કથાઓની જવાબદારી અશ્વિનભાઈ સંભાળે છે. અને અમને બોલાવવાનો, બીજાનો ખર્ચ, ગાડીનો પેટ્રોલ